कुछ जगहें और एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी बकेट लिस्ट में एक जगह बना लेते हैं। मेरे लिए नॉर्दर्न लाइट्स देख पाना हमेशा से ऐसा एक बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस रहा है। सोचा था मैनिफेस्ट करती हूँ, क्या पता किसी दिन मेरा सपना सच हो जाए। But I didn't know कि वो सपना उस साल में सच होगा, which is declared to be one of the best years to view the Northern Lights in for the next 11 years. And guess what? The Aurora season has just started. So here I am sharing every single detail of planning your perfect trip soon, क्योंकि I'm sure मेरी तरह आप में से भी कई लोगों की bucket list में है Northern Lights एक बार देख पाना। There are just 8 countries in the world जहां से आप Aurora Borealis या Northern Lights देख सकते हो, and I decided to visit one of them. I am experiencing one of the most magnificent phenomena of the world, the Aurora Borealis, right above me. Welcome to Arctic Russia. Yes, did you know that other than the Scandinavian countries, Russia से भी आप Northern Lights देख सकते हो, because a very large portion of Russia lies in the Arctic Circle, and the best part is सारे countries में से Russia is the cheapest for Indians and the most easy destination to get a visa to view the Northern Lights. Alright, so इसके पहले कि I delve into the details and take you to Russia with me in the upcoming episodes, in this first episode I wanted to explain to you what are some of the things that you have to keep in mind before you plan your trip to Russia. So first things first, visa. अब बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह रशिया का वीज़ा कंपैरेटिवली लेना बहुत ज़्यादा इजी है। सो बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती है जहाँ पे आप नॉर्दर्न लाइट्स के लिए अदरवाइज ट्रैवल कर सकते हो, लाइक फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इन कंट्रीज में आपको लगेगा शेंजन वीज़ा, and that can be a bit of a hassle, especially for us Indians in terms of the documentation. So the best part about getting a Russia visa is कि कोई भी आपको complicated documentation की ज़रूरत नहीं है और आपको ये वीज़ा 4 दिन के अंदर मिल जाएगा. Once you apply on the 4th day after your application, your visa will be in your hand and it only costs rupees 4,000. इसको एक यूनिफाइड ई वीज़ा कहा जाता है, जिसमें आपको 16 दिन का फ्री स्टे मिलेगा विद द यूनिफाइड ई वीज़ा. But if you plan on staying longer than 16 days, then definitely you will have to get a sticker visa, which is pretty similar to getting any other visa. But unified e visa जो है 4 दिन में आपको मिल जाएगा, just costs rupees 4,000. All you need to do is you need to upload your passport, you need to upload your passport size photo and just fill in a simple form. So let me take you through filling this form ताकि आप भी आपका application खुद कर सकें. फ्लाइट्स टू रशिया. इंडिया की किसी भी वेबसाइट पे आपको इंडिया से रशिया की फ्लाइट्स मिल जाएगी.
अब रशिया बहुत बड़ा है और यहाँ कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, बट मॉस्को एयरपोर्ट जाना इज रिलेटिवली मच चीपर बिकॉज इट्स द कैपिटल सिटी। और मॉस्को में भी देर आर 2 डिफरेंट एयरपोर्ट्स, तो यू कैन पिक एंड चूज विच एवर एयरपोर्ट यू वांट टू गो टू डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गोइंग टू बी स्टेइंग इन मॉस्को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर अराइवल इन रशिया, ताकि वो एयरपोर्ट से थोड़ा नज़दीक हो। मॉस्को के लिए अगर आप इंडिया की किसी भी सिटी से फ्लाइट बुक करो तो यू कैन गेट अ फ्लाइट एट अ रिटर्न प्राइस ऑफ एज चीप एज 38,000 समटाइम्स अगर आपने इन एडवांस बुकिंग की है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल द पॉसिबल वेबसाइट्स ऑनलाइन टू बी एबल टू गेट अ बेस्ट प्राइस टू बुक योर फ्लाइट टू रशिया। तो बुकिंग अ होटल इन रशिया कैन बी स्लाइटली ट्रिकी, स्पेशली जो वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं जैसे booking.com या Airbnb। या तो आपको रशिया की किसी होटल्स इस पे मिलेगी ही नहीं, और अगर आपको मिल गई तो बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइसेस पे मिलेगी। So the best websites to book hotels in Russian cities is Zen Hotels, जिस पे आप यहाँ इंडिया से ही बुकिंग करके जा सकते हो, and it accepts your international debit and credit cards too. Also another one is called Ostrovik, लेकिन इसमें सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट होके नहीं आएगा, या sometimes your payment won't get through with an Indian bank card. It depends. But either way, these two can be used for booking hotels. Speaking of hotels, मुझे रशिया में कई होटल्स ने स्पॉन्सर किया था to come stay with them and film them and share the experience with you guys. Like this beautiful igloo in the Arctic Circle which is called as the Aurora Village, or this A-frame house in the forest which was total like a dream house for me, which is called as the Yuga house. This was also in the Arctic Russia. And इन घरों के बारे में या जो भी मेरे स्टेज जहाँ मैं रही थी इनके बारे में आप डिटेल में मेरे आगे के एपिसोड्स में देखोगे। Okay, now Russia is the biggest country in the world. रशिया के अंदर ही 10 अलग टाइम जोन्स है, इतना वास्ट और बड़ा है रशिया, which means कि आपको एक जगह से दूसरे जगह, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी। दैट इज इफ यू डू नॉट वांट टू टेक अ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जर्नीज भी आप कर सकते हो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ ट्रेन, बट दैट विल टेक डबल द टाइम टू ट्रैवल। सो ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी तरह फास्ट कहीं से कहीं पहुंचना है तो यू हैव टू टेक इंटरनल फ्लाइट्स विद इन रशिया, विच इज व्हाट इवन आई डिड। तो मैं मॉस्को में लैंड हुई थी इंडिया से, और मुझे एक्चुअली एक्सप्लोर करना था आर्कटिक रशिया जो रशिया के नॉर्थ में है। तो मैंने मॉस्को से एक फ्लाइट ली टू मुरमांस्क विच इज अ बिगेस्ट सिटी इन द आर्कटिक सर्कल इन रशिया, and the internal flight cost me around 7K one way. But the thing is कि आपको किसी भी इंडियन वेबसाइट पे ये रशिया की इंटरनल फ्लाइट्स बुक करने नहीं मिलेगी। So what you can do is you can go into websites like trip.com और Aeroflot's website itself, जिसमें से आप बहुत ही easily internal flights within Russia book कर सकते हो. Also remember that these are the websites which will accept your international payments. So these are the easiest way to book internal flights in Russia. But there is also a catch here. Remember ये internal flights आपको बहुत ही सस्ती दिखेगी. So there is a catch. This is because ये बिना बैगेज के आपको कॉस्टिंग दिखाती है. सो प्लीज मेक श्योर जब भी आप बुकिंग कर रहे हो इन फ्लाइट्स या एनी फ्लाइट्स इन जनरल, यू ऑलवेज चेक फॉर बैगेज अलाउंस, बिकॉज ये जो इंटरनल फ्लाइट्स होती है इसमें सिर्फ एक बैग पर पर्सन अलाउड है विच कैन वे अबाउट 23 kgs. सो 1 piece पर पर्सन. इसके अलावा अगर आपको और बैगेज ऐड करनी है तो आपको पहले ही वो ऐड करनी पड़ेगी और पे फॉर इट एट द एयरपोर्ट. Now once you have your visa in hand, your hotels and flights booked, you're all set to arrive in Russia. You will obviously need a local SIM card to stay connected at all times. So Moscow airport पे आपको physical SIM card मिल जाएगा at 12,000 rubles और ₹1,000 approximately. या फिर अगर मेरी तरह आपको eSIM चाहिए तो you can use services like Raising SIM, जो रशिया लैंड होने से एक दिन पहले आप एक्टिवेट कर सकते हो. And once you land, you'll have internet at all times. So in terms of network, रशिया में मोस्टली Beeline या मेगाफोन नेटवर्क यूज होता है और नेटवर्क इज प्रीटी गुड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हर जगह नेटवर्क आपको आएगा इफ यू गेट कनेक्टेड टू दीज लोकल नेटवर्क्स. कुछ रिमोट रीजन्स है वो भी आर्कटिक रशिया में जहाँ पे शायद पैची नेटवर्क हो फॉर अ वाइल, बट वाईफाई वैसे भी हर जगह आपको अवेलेबल होगा ही. ऑल्सो रिमेंबर यू विल हैव टू डाउनलोड VPN. यू कैन यूज समथिंग लाइक टोमेटो VPN विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इंस्टॉल इट ऑन योर फोन पहले ही घर से सो दैट यू कैन यूज सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब आप लोकल नेटवर्क पे यूज नहीं कर पाओगे.
Okay, now Russians by far, from my personal experience in Russia, is that they were some of the sweetest, nicest, and most hospitable people that I have met. But having said that, language barrier होती है वहाँ पे mostly नहीं actually everybody सिर्फ रशियन में बात करते हैं. रास्ते में भी जो आप स्ट्रीट साइंस पढ़ोगे, जो मेन्यू कार्ड्स पढ़ोगे, everything is in Russian. You will hardly find anybody जो शायद इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जानता हो and will be able to communicate. So the best thing to do is download Google Translate and trust me, it'll make your life so easy. Also, अगर आप मेन्यू कार्ड या साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं पढ़ पा रहे, use Google Translator's image scan जिससे बस फोन को उस राइटिंग पे रख दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा. Okay, now here's an important one. You need to know that in the entire Russian Federation, no international debit or credit cards will work. पूरे रशिया में सिर्फ और सिर्फ वो लोग रशियन कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. सो यू नीड टू मेक अ कार्ड फ्रॉम अ रशियन बैंक. दिस कैन बी अ प्रोसेस विच यू वुड नॉट वांट टू डू अगर आप क्विकली वापस घर आना चाहते हो, क्योंकि बैंक फिर आपको अकाउंट बंद करवाना वगैरह होगा जिसको टाइम लगता है, एंड दैट मे बी लॉन्गर देन योर पीरियड ऑफ स्टे. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कैरी इनफ कैश विद यू. ऑल्सो रशिया में कहीं पे भी जो कॉमन करेंसीज होती है जैसे डॉलर्स या पाउंड्स, इसे नहीं यूज़ करते हैं. दे डू नॉट एक्सेप्ट दीज करेंसीज, ऑफ कोर्स नॉट इवन इंडियन रुपीज़. सो मेक श्योर कि आप घर से ही या तो फिर एयरपोर्ट से जो भी आपका करेंसी है, चाहे आपके पास डॉलर्स हो या इंडियन रुपीज़ हो, इसको आप रूबले में कन्वर्ट करके जाओ. रूबले रशिया की लोकल करेंसी है, तो आप घर से ही इसे कन्वर्ट करके जाओ. रशिया में सिटीज़ में जैसे कि बड़े सिटीज़ में लाइक सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में आपको कुछ करेंसी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप घर से ही करके जाओ सो दैट यू आर नॉट स्टक अप व्हेन यू आर इन द डेस्टिनेशन. क्योंकि like I said, language can also be a problem, asking for directions, going and finding a place, and you can be stuck up with no money. So it's best कि आप enough amount of money आपके पूरे ट्रिप के लिए कैश में कैरी करके जाओ in the local currency which is ruble. और मेरे जो आगे के एपिसोड्स हैं, दिस विल हेल्प यू प्लान योर बजट मच बेटर, क्योंकि उसमें मैं खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, ये सारे कॉस्ट भी डिस्कस करूँगी. Now food in Russia, again you will not have any issue as an Indian traveling to Russia in terms of food especially, क्योंकि उनका जो खाने का जो टेस्ट होता है, जो स्पाइसेस होते हैं, they are very similar to what we eat. So whether you are a non-vegetarian or vegetarian, आपको इस कंट्री में खाने में कोई इशू नहीं आएगा. एक चीज़ पे मुझे इशू आया था, which is your food delivery apps. तो इसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी रशियन फूड डिलीवरी एप्स डाउनलोड किए थे, दे ओनली एक्सेप्ट पेमेंट्स इन कार्ड्स एंड इन रशियन कार्ड्स. तो आप कैश पेमेंट्स नहीं कर पाओगे. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप ग्रोसरी जाके या तो सामान ले आओ एंड यू कुक इट योरसेल्फ इन योर होम अपार्टमेंट और समथिंग, or you go and eat out at a restaurant. As a non-vegetarian, the widely eaten meats here in Russia are reindeer meat, venison meat, pork and chicken. तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है टू ट्राई समथिंग न्यू इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटल, और गो विद योर चिकन एंड पोर्क. एंड फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खाने के लिए मिल जाएगी. इनफैक्ट जो रशिया का सबसे लोकल डिश खाया जाता है इज़ बीटरूट सूप, एंड दे ऑब्वियसली मेक इट विद मीट, बट यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज एंड आस्क देम टू टेक ऑफ द मीट इफ यू आर अ वेजिटेरियन. सो यू नॉट हैव एन इशू with regards to food in the entire region of Russia. Also in bigger cities like Moscow and St. Petersburg, आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. मैंने भी एक दिन, जब मेरे 10 दिन रशिया में हो चुके थे, आई वाज क्रेविंग सम इंडियन फूड, तो मैंने एक दिन एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाके आई थिंक बटर चिकन और दाल मखनी और नान खाई थी, एंड दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो ट्रस्ट मी, इवन द इंडियन फूड आउट देयर इन द इंडियन रेस्टोरेंट्स इज अमेजिंग. Okay, now if you are someone like me जो एक नई कंट्री में जाके सेल्फ ड्राइव करना प्रेफर करते हो ओवर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, then this section is specially for you. रशिया में कार रेंटल को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है ऑन द इंटरनेट, सो टेक दिस फ्रॉम मी एज अ फर्स्ट हैंड एडवाइस, क्योंकि मैंने रशिया में जाके अपनी खुद की कार रेंट की थी. सो हियर आर सम ऑफ द डूज एंड हियर आर सम ऑफ द डोंट्स. You don't need an international driving permit. You don't need a Russian passport. You don't need any extra documentation for renting a car. You don't need a car with a driver you can self-drive. A license from your country which is in English. Your physical passport at the time of rental. A deposit to be paid in cash. The amount depends from company to company.
I rented my car from a company called Troika. I leave their number in the description for you to check in case you'd like to rent from them. They could communicate a bit with me in English and their car rental process was super smooth. But for those who don't want to self-drive, there's always local taxis, trams, trains and buses available in bigger cities like Moscow and St. Petersburg. And if you take tours in the Arctic region, they will arrange you for your transport. ओके, तो किसी भी नई कंट्री में जाने के पहले मैं उस कंट्री के कुछ लोकल एप्स हमेशा डाउनलोड कर लेती हूँ सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट अराउंड द सिटी और द कंट्री इन इटसेल्फ एंड हियर आर सम ऑफ द वेरी 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 हैंडी एप्स दैट यू नीड टू डाउनलोड इफ यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टू रशिया. Yandex Go is a must for booking cabs and getting around the country, and also download Yandex Maps. It works everywhere because Google Maps doesn't work everywhere in Russia. Next, like I mentioned earlier, you can download Tomato VPN for using social media apps, maybe some Aurora tracking apps, Zen Hotels to book all hotels across Russia, and of course Google Translate. There are some food ordering apps too, but I won't recommend them because none of them accept cash payments and you will need a Russian card to make payments. So best is to go and purchase groceries or eat outside. Now last but not the least, when do you visit Russia if you are specially going to visit for the Northern Lights? गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि यहाँ पे जो व्यूइंग पीरियड है नॉर्दर्न लाइट्स का इज वेरी वेरी लॉन्ग. सो सितंबर से लेके ऑल द वे टू मार्च इज योर नॉर्दर्न लाइट्स व्यूइंग पीरियड. आपको इन महीनों में बहुत ही अमेजिंग नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिलेंगे. एंड मैं आगे के एपिसोड में जहाँ पे हम नॉर्दर्न लाइट्स एक्चुअली देखने जाने वाले हैं इन आर्कटिक रशिया, उस एपिसोड में मैं आपको इन डेप्थ और चीज़ें समझाऊंगी इन विथ रिगार्ड्स टू स्पेशली द नॉर्दर्न लाइट्स कि रशिया में आपको कौन से जगह पे जाना चाहिए, किन के साथ आप टूर्स बुक कर सकते हो, या अगर आपको टूर नहीं बुक करना और अकेले जाके नॉर्दर्न लाइट्स हंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो. हाउ डू यू कैप्चर इट ऑन योर डिवाइसेस वेदर इट्स अ फोन और अ कैमरा, आपको नेकेड आई से कैसा दिखेगा, ये सारे FAQs रिगार्डिंग नॉर्दर्न लाइट्स मैं एक इंडिविजुअल एपिसोड में कवर करने वाली हूँ. बट इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू विजिट, सितंबर से मार्च आर सम ऑफ द बेस्ट मंथ्स टू विजिट. नवंबर के बाद थोड़ी ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ऑफ कोर्स बिकॉज रशिया इज लोकेटेड इन सच अ लोकेशन, तो ठंड ज़्यादा हो जाती है. बट मेरा ये मानना है कि देयर इज नेवर अ रॉन्ग वेदर, इट्स ऑलवेज रॉन्ग क्लोथिंग. सो आई फील अगर आप वेल इंसुलेटेड हो, यू लेयर्ड अप गुड इनफ, you can survive any weather. So for now, this is all the important information that you need to know to book your trip to Russia. आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई थिंक मैंने कवर कर लिए फॉर समबडी एज अ बिगिनर. जब आप ट्रिप बुक करने के बारे में सोच रहे हो या यू आर कंसिडरिंग गोइंग टू रशिया फॉर द नॉर्दर्न लाइट्स, एंड एज यू गाइज मे हैव हर्ड, दिस ईयर इज द बेस्ट ईयर टू विटनेस द नॉर्दर्न लाइट्स, क्योंकि इसके बाद 11 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आपको इतने स्पेक्टेक्युलर नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिलेंगे. सो आई फील लाइक व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक रशिया जहाँ वीज़ा इतना आसान है हमारे लिए लेना 4 दिन में, such a cheap visa, and also the country is so much cheaper as compared to the other Scandinavian countries for the Northern Lights. तो अगर इसके अलावा आपको और कोई सवाल है regarding planning a trip to Russia, please leave them in the comments and I will be more than grateful, more than happy to answer those for you. And stay tuned because this is just the beginning, guys. In episode 2, I am going to be taking you to a location that will blow your mind. See you. Goodbye.